سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، غذائیت چاہیے، جسم کا توانا ہونا، صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح اور اچھی غذا نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ لاغر ہو جائے گا، بیمار ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری، کوئی ڈیزیز کوئی ایسی لاحق ہو جائے کہ پھر محتاجی بھی آ جائے۔ ایسے ہی نہیں؟ اسی طرح، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے جسم کو غذا فراہم کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کو نورش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی روح کو بھی غذا دینے کی ضرورت ہے۔ اسے بھی غذائیت چاہیے، اسے بھی توانا ہونا ہے، اسے توانائی چاہیے۔ جس طرح ہم دن میں 2 بار کھانا کھاتے ہیں، 1 بار ناشتہ بھی کرتے ہیں، پھر ٹائم بائی ٹائم ہم کوئی چائے، کوئی سنیک بھی لے لیتے ہیں، پھر جب دل کرتا ہے فروٹ بھی کاٹ کے کھا لیتے ہیں، کوئی سیلڈ بھی لے لیتے ہیں ساتھ، کوئی ڈرائی فروٹ بھی لے لیتے ہیں، کوئی مشروب بھی لے لیتے ہیں۔ تو ہم اپنے جسم کو جس طرح غذائیت دیتے ہیں، مختلف چیزوں سے نورش کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روح کو بھی غذائیت دیں، روح کو بھی نورش کریں۔ لیکن روح کی جو نورشمنٹ ہے وہ یہ ظاہری غذا نہیں ہے، وہ تلاوت قرآن پاک ہے، وہ نماز ہے، وہ نوافل ہیں، وہ ذکر ہے، ہر وہ چیز جو آپ کی روح کو توانا کرے، اس کا تعلق آپ کے دین اسلام سے ہے، آپ کے رب سے ہے، آپ کے اور میرے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں اپنے نبی پر۔ تو اسی طرح یہ بات سمجھنے والی ہے، بڑی قیمتی بات ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا اس کو ڈسکلوز کروں کہ تھوڑے سے 10-15 منٹ کے بیان میں ہمیں اپنے جسم کو توانا کرنا ہے، پھر ہمیں اپنی روح کو توانا کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہی اس جثے میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے نفس، اس کی بھی غذا ہے، وہ بھی طاقتور ہونا چاہتا ہے، وہ بھی نورشمنٹ چاہتا ہے، اور وہ بہت ساری ڈیمانڈیں کرتا ہے، یہ بھی دے دو بھائی، یہ بھی دے دو بھائی، یہ بھی دے دو۔ اور ہم لوگ چاہنے کے باوجود یا نہ چاہنے کے باوجود بھی ہم اسے غذائیت دیتے ہیں، اسے نورش کرتے ہیں، اس کو بھی طاقتور بناتے ہیں، توانا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا نفس جو ہے وہ اکثر ہی ہم پر غالب آ جاتا ہے۔ کیوں؟ ہم اسے نورشمنٹ بڑا کرتے ہیں، بہت زیادہ نورش کرتے ہیں، بہت زیادہ غذائیت دیتے ہیں۔ اب تھوڑی سی ذرا ڈیٹیل میں جاتے ہیں۔ ڈیٹیل کیا ہے؟ ڈیٹیل یہ ہے کہ ہم دن میں 2 بار کھانا کھاتے ہیں، 1 بار ناشتہ کرتے ہیں، سو اٹ مینس 3 ٹائم ہم اپنے آپ کو ریگولرلی فیڈ کرتے ہیں۔ جو ڈیزرٹس ہیں، جو فریش فروٹس ہیں، جو ڈرائی فروٹس ہیں، یا جو سنیکس ہیں، یہ ہم اوکیجنلی لیتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کبھی لیا کبھی نہ لیا، کبھی لے لیا کبھی کچھ لیا کبھی کچھ لیا۔ تو جو پراپر جو ہم کھانا کھاتے ہیں اور ناشتہ کرتے ہیں وہ 3 ہی ہے۔ اب روح کی بات کرتے ہیں۔ روح پر نمازیں 5 فرض ہیں۔ سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کی جو غذا ہے وہ ہمارے جسم سے زیادہ ہے۔ بھائی اللہ پاک جو کریٹر ہے،
इस जिस्म का भी, इस रूह का भी, वो तो बेहतर जानता है कि कौन से यानी जगह पे कितनी चीज की ग़िज़ाइयत की जरूरत है। अच्छा भाई 5 नमाजें फर्ज हैं, उसके अलावा भी नफल हैं, उसके अलावा कुरान की तिलावत का हुक्म है, उसके अलावा जिक्र अज़कार हैं, दुरूद पाक है। दुरूद पाक भी हुक्म इलाही है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, मैं और मेरे फरिश्ते हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम पढ़ा करो। भी फर्ज है, लाजिम है। और बहुत सारे काम, जिक्र का हुक्म है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि, हर वक्त अपने रब का नाम पुकारो, सबसे टूट कर उसी के हो रहो। इसका मतलब जिक्र भी फर्ज है, हुक्म इलाही है ना जी, ये कमांड है, इसमें कमांड का सीगा है। अब छह नमाजें 5 ही हैं? नहीं, 5 से भी ज्यादा है। अशराक भी है, तहज्जुद भी है, लेकिन वो फर्ज नहीं है कि चलें अगर पढ़ ले तो आपका फायदा है इसमें। इसके अलावा नवाफिल, भाई नवाफिल भी बेइंतहा, आप 10 पढ़ें, 20 पढ़ें, 50 पढ़ें, 100 पढ़ें, जितने मर्जी पढ़ें। कुरान की तिलावत, भाई यही कुरान है, यही 30 पारे हैं, जितना दिल करता है पढ़ो, बस पढ़ो। जिक्र अज़कार तस्बीहात मामूलात वज़ाइफ करो, सदका खैरात करो, ज़कात दो, उम्रा हज करो। ये सारी की सारी ग़िज़ाइयत है आपकी रूह की। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जिस्म को तकरीबन 30% और हमारी रूह को 70% ग़िज़ाइयत चाहिए। अच्छा, अब नफ्स की बात करते हैं। हर बुरी इल्लत, हर तकब्बुर वाली बात, हर वो चीज जिसमें मैं और मेरा हो, वो नफ्स की ग़िज़ा है। झूठ नफ्स की ग़िज़ा है, चुगली, गीबत, हवा, हिरस, ये सारी नेगेटिव चीजें नफ्स की ग़िज़ा हैं, क्योंकि हर एक का नफ्स जो है नफ्स अम्मारा होता है। हाँ, वो मुत्तकी है, वो परहेजगार है, वो मोमिन है, वो वली हो गया, यस। फिर ये नफ्स जो है ना अपनी स्टेजें बदलता 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 नफ्स मुतमइन्ना तक चला जाता है, यस। फिर ये ऐसी चीजें डिमांड नहीं करता, फिर नहीं कहता कि अच्छा भी मुझे टॉप ऑफ द रेंज गाड़ी चाहिए, ख्वाहिशात, मुझे टॉप ऑफ द रेंज मोबाइल चाहिए, महंगी से महंगी घड़ी और लिबास मेरे जिस्म पर हो, मेरे शूज फॉरेन के हों। ये नफ्स की ख्वाहिशात, नफ्स अम्मारा की ख्वाहिशात हैं, और जब जब आप इसकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, ये डिमांड और बढ़ा देगा। इससे ये ताकतवर होता है, इससे ये तवाना होता है, और ये आपका साथी नहीं है, ना आपका हमदर्द है। आपको कहेगा चोरी भी कर ले, लूट भी ले, धोखा भी दे दे, बस मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मुझे ला के दे जहां से मर्जी, मेरे पास ये होना चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास दौलत होनी चाहिए, मेरे पास शोहरत होनी चाहिए, मेरे पास ताकत होनी चाहिए, मैं पावर में आना चाहता हूँ। हर बुरी चीज आपको उकसाता है कि ये कर। शैतान का भाईवाल है, शैतान का साथी है, वो दिखा के अट्रैक्शन करके छोड़ देता है। ये जब तक करा ना ले, ये जान नहीं छोड़ता, इसको भी ग़िज़ा चाहिए। हम क्या करते हैं, हम अपने जिस्म को तो ग़िज़ाइयत देते हैं, पर रूह की ग़िज़ाइयत में डंडी मार जाते हैं। हम अपने जिस्म को तो ग़िज़ा देते हैं, उसके साथ साथ हम अपने नफ्स को भी पूरी पूरी ग़िज़ा देते हैं, लेकिन रूह की ग़िज़ाइयत में कमी कर देते हैं, ना चाहते हुए भी कमी कर देते हैं। नमाज मिस होगी और चलो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। कुरान पाक आज नहीं पढ़ा, और नहीं यार आज मैं मसरूफ था, बहुत बिजी था, जाना था कहीं, अपॉइंटमेंट थी, कुरान को इग्नोर कर दिया। भाई आज तस्बीहात दुरूद पाक नहीं पढ़ा, अच्छा वो बस मैं यार आज मेरे कपड़े ठीक नहीं है, मैं बस बाहर था, मैं सारा दिन स्टक रहा हूँ, अब
टायर्ड हूँ, थका हुआ आया हूँ, खाना खाया, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, मुझे सोने दो यार। हाय, जिसको ग़िज़ा देनी है उसको ग़िज़ा देते नहीं, और जिसको नहीं देनी उसको दे रहे हैं, और जिसकी ग़िज़ा कम है उसको ज़्यादा दे रहे हैं। बैलेंस करें। जिस्म को ग़िज़ा दें 30%, रूह को ग़िज़ा दें 70%, नफ्स को ग़िज़ा मत दें, बिल्कुल ना दें। भूखा रखें इसको कमज़ोर करें, इसको मारें, इसको मलगूब कर लें, नापरवान चढ़ने दें इसको, इसकी ख्वाहिशात को कुचलें, बिल्कुल आजिज़ी की तरफ लेके आएं इसको कभी ज़िक्र से इसकी मरम्मत करें, कभी दुरूद पाक से इसको कमज़ोर करें, कभी नमाज़ों के सजदों को लंबा करके इसको मगलूब करें, कभी अल्लाह के ज़िक्र में बैठकर इस पर अल्लाह के नाम मुबारक की ज़रबें लगाएं। अल्लाह 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 अल्लाह, मुशक्कत कराएं इससे ज़िक्र की, नवाफिल की, शब-ए-दारियों की मुशक्कत कराएं इससे। ये फिर कमज़ोर हो जाएगा, लाग़र हो जाएगा, फिर ये सरकशी नहीं करेगा, फिर ये ख्वाहिशात नई से नई आपको ला के देगा कि ये अब चाहिए, अब ये करो, अब ये करो, बुराइयों की तरफ नहीं उकसाएगा। क्यों? कमज़ोर हो गया ना, आप इसको फीड नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब हम अपने जिस्म को बहुत ज़्यादा ग़िज़ा देते हैं तो क्या होता है? इसमें सुस्ती आ जाती है। आप देख लें, आज़मा के देखिएगा। आप खाना खाएँ, जी भर के खाएँ, सैर होके खाएँ, बल्कि उससे भी ज़्यादा खा लें, तबीयत में फ़ौरन सुस्ती आनी शुरू हो जाएगी। दिल करेगा मैं कहीं टेक लगा के बैठ जाऊँ, दिल करेगा यार कोई तकिया लेके ना मैं थोड़ा-सा ज़रा सस्ता लूँ। नहीं भी टाइम ना नींद का तो कहेगा नहीं थोड़ा-सा ज़रा मैं रिलैक्स कर लूँ, चिल कर लूँ। ग़फ़लत आएगी, सुस्ती आएगी, कोताही आएगी, नमाज का वक़्त होगा, उठने को दिल नहीं करेगा, ग़िज़ा ज़्यादा खाने का। कोई काम करना है मुशक्कत वाला नहीं होगा, क्यों? खाना ज़्यादा खा लिया, तंग हो रहा हूँ यार आज मैं। बैठकर कोई मामूलात करने थे, सबक करने थे, नहीं होंगे, क्यों? खाना ज़्यादा खा लिया, मुझसे ज़मीन पे बैठा भी नहीं जा रहा। लिहाज़ा जब ग़फ़लत आएगी, कोताही आएगी, सुस्ती आएगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप ज़िक्र अज़कार से, नमाज़ से, कुरान से कहीं न कहीं कोताही करेंगे। और अगर रूह को ग़िज़ा ना मिली तो रूह भी कमज़ोर हो जाएगी। रूह कमज़ोर होगी तो ईमान कमज़ोर होगा। झूठ जो है झूठ ही नहीं लगेगा। झूठ बोलते हुए हेजिटेशन ही नहीं होगी, बेधड़क धड़ल्ले से बोलेगा झूठ। चुगली करेगा, गीबत करेगा, हवा हिरस तारी होगी, किसी का माल खा लिया, किसी के साथ ज्यादती जुल्म कर दिया, हया नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी, बेधड़क होके करेगा। क्यों? रूह कमजोर है, उसको ग़िज़ा मिल ही नहीं रही, वो कैसे रेजिस्ट करे? रूह कमजोर है, ईमान कमजोर है, इसलिए किसी का माल खाया खुदा का खौफ ही नहीं आएगा, क्योंकि वो तो शैतान के और नफ्स के हत्थे चढ़ी हुई है। हमने उसको ग़िज़ा नहीं दी, उसको कमजोर कर दिया और नफ्स को तवाना और ताकतवर कर दिया। नमाज में दिल नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, जिक्र की तरफ रुजू नहीं होगा। जब दीन की बात आएगी तो बोरियत लगनी शुरू हो जाएगी। जब कहीं महफिल गरमा के बैठे होंगे, दुनिया की, कारोबार की, मुआशरती मामलात की, सियासतों की महफिलें जमा के बैठे होंगे, सारी सारी रात गुजर जाएगी, ना नींद आएगी ना थकावट आएगी। क्यों? रूह कमजोर है, नफ्स ताकतवर है, जिस्म ताकतवर है, रूह कमजोर है। दिल नहीं करेगा उम्रे को जाने को या हज पे जाने को। पैसे हैं,
वक्त है, उम्र है, ताकत है, जिस्म में जवानी है, हज पे जाने को दिल नहीं करेगा। ओ अच्छा कोई बात नहीं, कर लेंगे यार जब टाइम आएगा। और हमारे इंडिया और पाकिस्तान में विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी माजरत के साथ, ये ट्रेंड बन गया हुआ है कि अच्छा भी अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, अच्छा भी इनको ना जरा आप हज पे भेजो इनको हज कराओ जी, हज कराओ, इनको हज कराओ। ओ भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हज किया है, 2002 में किया था, आज से 20 साल पहले। और मैं उस वक्त सोचा था कि ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है, बड़ा मुशक्कत वाला काम है, ये बूढ़े बंदे का काम नहीं है, ये तो जवान आदमी थक जाता है इधर आके, इतनी मुशक्कत है, इतनी मेहनत है इसमें। हाय, तो हम बुजुर्गों को हज पे भेज देते हैं। ओ नहीं भाई, हज पे जाएं, उम्रों पे जाएं, उम्रे करें, ये जवानी का काम है। खैर, हम अपने मौक़िफ़ से ना हट जाएं, अपने जिस्म को लुक आफ्टर करें, बिल्कुल करें, लेकिन अपने नफ्स को लुक आफ्टर ना करें, बल्कि अपनी रूह को अपने जिस्म से और अपने नफ्स से भी ज़्यादा लुक आफ्टर करें। उसको नमाज की तरफ, रोज़े की तरफ, ज़िक्र की तरफ, वज़ू की तरफ, तहारत की तरफ, पाकीज़गी की तरफ, तक़वा परहेज़गारी की तरफ लेके आएँ, ताकि वो कवी हो और मज़बूत हो और ताकतवर हो। और जितनी ताकतवर रूह होती जाएगी, आपकी दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाएंगी, आपको अच्छी चीजें अच्छी लगने लगेंगी, आपको बुरी चीजें बुरी लगेंगी, आपका ज़मीर अंदर से बुरे काम करने पर मलामत करेगा कि खबरदार ये ना करना, अच्छे कामों के लिए उकसाएगा कि हाँ हाँ ये कर लो, बड़ा नेकी का काम है, इसमें फायदा होगा, इसमें अल्लाह राजी होगा, इसमें आपके और मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे। करो करो, ये अच्छा काम है, करो। नफ्स को भूखा रखें, नफ्स को कमजोर करें, खुदारा अपने नफ्स को परवान ना चढ़ाएं, उसको ग़िज़ाइयत ना दें, नफ्स को मारें, इसको मारने का हुक्म है। किसी अल्लाह के वली ने क्या खूब शेर कहा, 100,000 किताबां पढ़ियां ते अजे भी तालब दरदा हूँ, बाज फकीरां किसे नहीं मारिया, जालम चोर अंदरदा हूँ। तशरीह है कि भी बहुत सारी किताबें पढ़ ली, 100,000 किताबें यानी सैकड़ों हजारों किताबें पढ़ ली, अजय भी तालब दरदा हूँ, अभी भी दुनिया की हवा हिरस में फंसा हुआ है, अभी भी नफ्स के हत्थे चढ़ा हुआ है। और सिवाय अल्लाह के वलियों ने, सिवाय अल्लाह के वलियों ने, अल्लाह के मोमिनीन ने, ये जो हमारे अंदर जो चोर है, चोर की शक्ल, चोर है ना जी, चोरी करता है, ईमान का चोर है, परहेजगारी का चोर है, ये सच्चाई का चोर है, चोरी कर लेता है, ये सच बोलने नहीं देता, झूठ बोल के अतराता है कि हाँ हाँ मैंने झूठ बोला था ना, देखो ये फायदा उठा लिया, झूठ की तारीफ करता है, झूठ को परवान चढ़ाता है, कहता है हाँ यार क्या करूं, कारोबार है, बस झूठ ना बोलने तो ये कारोबार फिर चलता नहीं है। हाय, हमने हलाल रिज़्क पर, अल्लाह पर तकवा करना छोड़ दिया और हमारा ये यकीन हो गया कि अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम। ये आलम है अब। रूह कमजोर है, ईमान कमजोर है, नफ्स ताकतवर है, इसलिए ये ख्याल आ रहा है। नहीं तो आप अल्लाह पर भरोसा रखें कि वो राज़िक है, मुझे हराम नहीं खाना, मैंने जब भी खाना है हलाल खाना है, थोड़ा खा लूंगा लेकिन हलाल खाऊंगा, मुझे ना खुद हराम खाना है ना अपने बच्चों को हराम खिलाना है। अपनी रूह को ताकतवर करें, अपने जिस्म की नशोनुमा करें, अपने नफ्स को भूखा रखें, उसकी ख्वाहिशात की तकमील ना करें। इंशाअल्लाह ताला आप इस जिंदगी में भी कामयाब होंगे, आप कब्र में भी कामयाब होंगे और आप महशर में भी कामयाब लोगों में शुमार किए जाएंगे। उसके लिए हमें अपनी रूहों को ताकतवर करना है और रूह की ग़िज़ा मैंने बताया बहुत ज़्यादा है, लिहाजा फिक्र करें इस बात की कि हमें नमाज में, ज़िक्र में, कुरान में
तकवा, परहेजगारी में, पाकीज़गी में, सच्चाई में, इन चीज़ों पर हमें बिलीव करना है, इन चीज़ों पर हमें अमल करना है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितना भी वक़्त है दुनिया में, अल्लाह हमें दीन इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए। या रब्बे ज़ुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। अल्लाह, हमने थोड़ा सा ज़िक्र किया, अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह, अपनी नाक़स सोच से ऐसे ही बस कैलकुलेशनें निकाल के बात को समझने की कोशिश की है, कोई आड़ा टेढ़ा बोल मुँह से निकल गया हो, कोई बात अल्लाह तेरी शान के लायक ना हुई हो, कोई बात नागवार गुजर गई हो, हमें माफ़ फरमा दे। हम रुजू करते हैं, तौबा करते हैं, कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमारी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ माफ़ फरमा दे, हमारी लग़ज़िशें माफ़ फरमा दे, भूल चूक माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। हम बहुत कमज़ोर हैं, पास्ट में भी बड़े कमज़ोर रहे हैं, प्रेजेंट में भी कोई ताकत, कोई तवानाई नहीं है। अल्लाह, आगे आने वाले वक़्त में तू आलिमुल गैब है, बेहतर जानता है। अल्लाह, हमारे पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के तमाम गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह, हमारे आबाओ अजदाद के, हमारी औलादों नस्लों के तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह, कुल उम्मत मुसलमा की तरफ से तेरी बारगाह से माफ़ी मांगते हैं, माफ़ फरमा दे। तेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला पेश करते हैं, सरकार के वसीले से आज माफ़ी आम फरमा दे, वो गुनाह माफ़ फरमा दे अल्लाह, जो हमने जानबूझ कर किए और वो भी जो हमने अनजाने में कर दिए, वो भी जो हमें याद है, वो भी जो हमें याद नहीं है, माफ़ फरमा दे। वो भी जिसका कोई गवाह मौजूद है और वो भी जिसका कोई गवाह मौजूद नहीं, सिर्फ तू जानता है। अल्लाह, सब माफ़ फरमा दे। तौबा करते हैं, सच्ची करके कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमारी तौबा में भी लग़ज़िश है, कहीं ना कहीं कमजोरी है, पर तेरी बारगाह से इस उम्मीद के साथ दुआ कर रहे हैं, इस यकीन के साथ दुआ कर रहे हैं कि तू अपने महबूब के वसीले से माफ़ फरमा देता है। अल्लाह, तुझे अपने नबी का वसीला पेश करते हैं, हमें माफ़ फरमा दे, हमारी कोताहियां लग़ज़िशें माफ़ फरमा दे, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे, तमाम ज़ाहिर व बातिन में जो भी कोताहियां लग़ज़िशें हो गई सब माफ़ फरमा दे, रहम वाला मामला फरमा दे, मुआफ़ फरमा दे, तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमारी गलतियों खताओं पर हमें कोई आजमाइश ना देना, अल्लाह, हमें कोई बंदिश ना कर देना, अल्लाह, हमें कोई सजा ना देना। हम किसी काबिल नहीं हैं, सरेंडर करते हैं, तेरी बारगाह से इल्तिजा करते हैं। अल्लाह, तमाम परेशानियां माफ़ फरमा दे, तमाम दुख तकलीफ़ें दूर फरमा दे, तमाम बंदिशें रुकावटें दूर फरमा दे। अल्लाह, तमाम आजमाइशें दूर फरमा दे। हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं हैं, सरेंडर कर रहे हैं। या अल्लाह, माफ़ फरमा दे, माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह, कबूल फरमा ले। अल्लाह, ऐसी कबूलियत अता फरमा कि आइंदा गुनाह की तौफीक ना रहे, बुराइयों से, गुनाहों से बचने की तौफीक मिल जाए, शैतान के नफ्स के हत्थे चढ़ने से बच जाएं, ऐसा करम अता फरमा। हम अपने जिस्म को तो लुक आफ्टर करते हैं, हमें अपनी रूहों को भी तवाना करने की तौफीक अता फरमा। हमें अपनी बारगाह से क़यामों, रुकू और सजदों की हलावत अता फरमा, शरीनी अता फरमा, कुरान की समझ बूझ अता फरमा, दीने इस्लाम की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाह, हमें कुरान सही तरीके से पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा कि बेशक सब तौफीकें तेरी बारगाह से हैं। अल्लाह, हम पर रहम फरमा, अपने महबूब के सदके वसीले से रहम फरमा, अव्वल व आखिर खैर फरमा दे, ज़ाहिर व बातिन खैर फरमा दे, दुनिया में रहना खैर वाला हो, दुनिया से जाना खैर वाला हो, कब्र में खैर अता फरमा दे। अल्लाह, हशर में भी खैर वाला मामला हो, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह,
हमारी गलतियां खताएं माफ़ फरमा, कोताहियां सुस्तियां बेअदबियां माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा, जो टूटी फूटी इबादत की अपनी बारगाह में कबूल फरमा, जो सदकात खैरात किए माली इबादत की वो भी कबूल फरमा। अल्लाह जो भी हमने दीन हक की खिदमत की, कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे, अल्लाह सबको कबूल फरमाते हुए हम पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। मुझ पर भी, मेरे साथियों पर भी, जो साथी हाथ उठाए बैठे हैं आमीन कह रहे हैं, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा। जो लाइव बैठे हुए हैं उन पर भी, जो बाद में रिकॉर्डिंग की शक्ल में सुन रहे हैं लेकिन दुआ में आमीन कह रहे हैं, हाथ उठाए बैठे हैं, अल्लाह सबकी हाजात को पूरा फरमा दे, सबकी नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे, सब पर अपना लुत्फ व करम अता फरमा दे। जो बेरोजगार हैं उन्हें हलाल और तैयब रिज़्क अता फरमा, जिनके काम कारोबार हैं पर वो परेशान हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से उन्हें तरक्की और कामयाबी अता फरमा, वाफर रिज़्क अता फरमा, कुशादा रिज़्क अता फरमा, रिज़्क की तंगियों परेशानियों मुश्किलों परेशानियों से बचा उनको, अल्लाह हम सबको बचा। अल्लाह जो परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा, जो तंग दस्त है उनकी तंग दस्तियां दूर फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्जों से खलासी अता फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाएं अता फरमा। खुसूसन बीमारों के लिए दुआ गो हैं अल्लाह, उम्मत मुसलमान में जो कोई भी बीमार है, मर्द है औरत है, बच्चे हैं जवान हैं बूढ़े हैं, किसी भी मुल्क में दुनिया के किसी कोने में है, अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा। खुसूसन उम्मत मुसलमान के लिए और बिलअमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह अपना रहमो करम अता फरमा। अल्लाह जो कोई कोर्ट कचहरी कोई इमिग्रेशन के मामलात में है, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमा, अपने खजाना गैब से उनकी मदद अता फरमा, मुसलमानों को सरवरी अता फरमा, सुरखरू फरमा। मेरे तमाम साथियों की तमाम नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक जरूरतें अल्लाह अपने खजाना गैब से पूरी फरमा दे, अपने खजाना गैब से पूरी फरमा दे। हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, जिक्र फिक्र करने की तौफीक अता फरमा, हमारे बच्चों को हदायत वाला बना, अदब व एहतराम वाला बना, बुजुर्गों का अदब करने वाला बना, कुरान का कारी बना, कुरान का हाफिज बना। अल्लाह हमारे बच्चों को दीन की समझ बूझ अता फरमा, दीन और दुनिया के बेहतरीन अलूम अता फरमा, बच्चों को माँ बाप का फर्मा बरदार बना, बुजुर्गों को वालिदैन को अपने बच्चों के साथ शफकत करने वाला बना दे, अपना रहम अता फरमा। जिस वली कामिल ने, जिस मर्द कलंदर ने हमें हक और सच की राह दिखाई, आपके दर्जात आला तरीन फरमा, आला तरीन फरमा। हमारे तमाम मशाइख, असातिज़ा और वालिदैन के दर्जात आला तरीन फरमा। जो हयात है उन्हें जिंदगी तंदुरुस्ती बुलंद दर्जा अता फरमा, जो दुनिया से चले गए उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, कब्र की हशर की मंजिलें आसान फरमा। अल्लाह हजूर मियाँ साहब मुबारक उम्र खिजरी अता फरमा, हजूर मुबारक साहब रहमतुल्लाह ताला का फैज़ पूरी दुनिया में आम फरमा। इन वलियों की फीज़ो बरक़ात से हमें भी मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमा, इन वलियों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की तौफ़ीक अता फरमा, इन वलियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। बेशक सब तौफ़ीकें तेरे पास हैं। मेरे साथियों की जो भी नेक हाजात हैं, दिली तमन्नाएं हैं, जिनका मैंने नाम भी नहीं लिया, अल्लाह वो साथ हाथ उठाए बैठे हैं, तू आलिमुल गैब है, तू मुसब्बिबुल अस्बाब है, अपने करम से उनकी तमाम हाजात को पूरा फरमा दे, तमाम दुआओं को कबूलियत बख्श दे, तमाम नेक तमन्नाएं पूरी फरमा दे। अल्लाह नान नफके की दौड़ धूप से हमें बचाना, अल्लाह रहम वाला मामला फरमाना। थोड़ा वक्त रिज़्क रोजी रोटी के लिए लगे, ज्यादा वक्त तेरी याद में सर्फ हो, दीन की खिदमत में सर्फ हो, क़याम और रुकू और सजदों में सर्फ हो, शब बेदारियों में सर्फ हो, तेरे महबूब पर दुरूद पाक पढ़ते हुए सर्फ हो, ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह झूठ से बचाना, मकरो फरेब से बचाना, शैतान की शैतानियत से, वहशत से, उसकी हैवानियत से, उसकी दरिंदगी से हमें बचाना, नफ्स की चालबाजियों से, उसके मकरो फरेब से हमें बचाना। अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी औलादो नस्लों पर रहम फरमा, हमें दीन पर इस्तकामत अता फरमा। जितनी भी जिंदगी है अल्लाह पाक दीन पर इस्तकामत वाली हो, ऐसा करम अता फरमा। जब वक्त मौत आए तो कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना, कलमे और ईमान पर हमारा खात्मा करना। जो साथी हमारे सफ़र पर गए हुए हैं, इंडिया गए हुए हैं, जो कनाडा जाने की तैयारी में हैं, जो इंग्लैंड आए हुए हैं, जो इंग्लैंड से पाकिस्तान गए हुए हैं, या अल्लाह पाक सब के लिए दुआ गो हूँ।
मुझे सब याद हैं। नाम नहीं ले रहा, इज्तिमाई दुआ में बाकी भी सारे शामिल हो जाते हैं। या अल्लाह हम सब पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जो मुसाफिर हैं खैर खैरियत से अपने घरों को पहुँचे। या अल्लाह जो आस उम्मीद लगाए बैठे हैं, हिजरत की नीयत किए हुए हैं, या अल्लाह कोई माइग्रेशन का प्रोग्राम है, कहीं जाके कोई दीन की खिदमत करना चाहते हैं, या अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता फरमा। सबसे दीन का काम ले ले। तू साहिब इख्तियार है, साहिब कुदरत है। अल्लाह तू कुदरत रखता है, जिससे चाहे दीन का काम ले ले। हम अपने आप को पेश करते हैं, हम अपनी औलादों को पेश करते हैं, मैं अपने साथियों को पेश करता हूँ। या अल्लाह हम सबको अपनी बारगाह में कबूल, जहाँ जहाँ कोई मसरूफ है, कारोबार में मसरूफ है, किसी मुल्क में मसरूफ है, किसी फैमिली में मसरूफ है, मखलूक की खिदमत में लगा हुआ है, या अल्लाह वहाँ वहाँ उनसे दीन का काम ले ले। हर जगह दीन के सिपाही तो चाहिए, हर जगह मोमिनीन तो चाहिए। या अल्लाह हमसे दीन का काम ले ले, बहुत सारा दीन का काम ले ले। हमारे मशाइख को हम पर राज़ी फरमा। इलाही अंत मक़सूदुना व रिदा का मतलूबुना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मारफता सिफ़ातिक। आमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आप सब साथियों को आज की महफिल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। अल्लाह मेरी तमाम दुआएं आपके हक़ में भी कबूल व मकबूल फरमाए। जो आपके दिल में दुआएं रह गई अल्लाह वो भी मकबूल फरमाए। और अल्लाह पाक आपको मुझे बार बार बाअदब हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए। आमीन। आइंदा संडे तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।